Hello viewers, welcome everyone to yet another episode of Bajaj Life Insurance Life Goals Heroes Talks. Today we are thrilled to welcome Mr. Anil Gupta, a renowned figure in the insurance industry, who is joining us today with his daughter Archita Gupta. Anil first started his career in 1993 and today he is one of the top insurance consultants in the insurance industry. Driven by passion to be on the top, it comes as no surprise that he is now a master in term insurance. So Anil ji, your story is quite fascinating. So I think our viewers, our listeners would be willing to know more about your journey. Yeah, sure. So, as you mentioned earlier, that I started my business in 1993 as an insurance advisor, and from there till 2025, and from an insurance advisor to now a wealth planner under the brand name AKG Wealth Planner. So we started that in 1993, and that too was on a push. I was not really interested in taking the insurance agency, but yes, somehow बोलते हैं ना कि भाई जो हो जाए वो अच्छा होता है, और अगर कोई बड़े करे तो सबसे अच्छा होता है. It's like that. And insurance taught us that everything depends upon the consistency and hard work. तो जब आप शुरुआत किए थे 1993 में, क्या क्या what are the initial challenges that you have faced and how have you overcome those challenges? कोई भी शुरुआत में तो challenges रहता ही है, ये तो So initial challenge was insurance, since I told that I was pushed and not interested in this. But yes, एक चीज़ है, मैं इसको अपनी बड़ाई नहीं कहूँगा, पर मैं जिस भी बिजनेस में या कोई भी काम में अगर लेना चाहता हूँ या लेता हूँ तो मैं उसमें हमेशा टॉप में रहना चाहता हूँ. तो in 1993 when I first time visited my branch, तो there was a blackboard. उस ब्लैक बोर्ड पे मैं जब इंटर किया तो देखा मैंने 10 नाम लिखे हुए थे. तो 10 नाम मैंने जब पता किया क्या था, तो वो उस महीने के टॉप 10 एजेंट्स के नाम थे उस ब्रांच के लिए. तो मुझको आज भी अच्छे से याद है. So 23rd August 1993 I entered and I decided myself कि next month from on 1st of September my name should be there. And वो होता है ना कि जो चाहो पूरी दुनिया आपको मिलाने लग जाती है. So in 1993 there was a policy launch and in 7 days time my name was there. And from that day till yesterday the name is there. आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ द पीपल्स. बट अब हम जब उनसे मिलने जाते हैं, ये जब सामने बैठते हैं तो एक तो हिकअप्स होता ही है, राइट? सो वो पहला मीटिंग का हिकअप्स का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए. Patient, that too in insurance industry. Again insurance industry I am saying. Because यहाँ पे ना नो सुनना बहुत ज़रूरी होता है. और अगर आप फेस ऑफ पे नो नहीं सुनते हो तो आप बहुत जल्दी गायब हो जाओगे. और ख़ास करके आज के जो जनरेशन में फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years द यंगर जनरेशन, इनको बहुत इजी मनी चाहिए. दे आर नॉट विजनरी फॉर देयर फ्यूचर थिंग्स. तो अब चैलेंजेस जो है वो डिफरेंट हो गई हैं. अब लोगों का सिनेरियो डिफरेंट हो गया है. पहले मैं इंश्योरेंस से वेल्थ प्लानर क्यों बना, ये इसका स्टोरी इसी पे आता है. बिकॉज प्योर इंश्योरेंस इज दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट. अब उनको क्या चाहिए कि भाई जो भी चीज़ें वो शॉर्ट टर्म पे रह जाए. दे आर नॉट लुकिंग एट लॉन्ग टर्म थिंग्स. सो ये पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई एम वर्किंग ग्रैंडफादर, फादर एंड द सन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन दैट वे. तो वो तीनों चीज़ों तो जो थर्ड जनरेशन है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द इंश्योरेंस कंडीशनल. जो कन्वेंशनल पॉलिसीज़ है उसको बोल दो आप, या जो आज के दिन में जिसमें सेविंग्स प्लान को बोल दो, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. बट थैंक्स टू यूलिप, सो अगेन द न्यू प्रोडक्ट केम, सो that is helping us to get the big premiums and the things. So that way it goes. But yes, patient is very important in our industry. Because again, we haven't actually seen the struggle that you all have gone through. Right. We have always gotten everything. Like he said, easy money. We are actually chasing easy money. जैसे अभी इंश्योरेंस में we are seeing कि जितना रिटर्न्स है उसमें नहीं डाल के मार्केट में डाल देते हैं या म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं. So there is that thinking a lot, but they don't understand कि मार्केट जब गिरेगा तो इंश्योरेंस का फिक्स प्रीमियम, फिक्स्ड परसेंटेज तो स्टिल मिलेगा. राइट. ये चीज़ समझने में है, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है. हम लोग आवर जनरेशन डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड नो. Very true. Even now, I was talking to a friend of mine for an insurance policy. They didn't want to hear about anything other than ULIP. Right. Simply because it was market based. उसको पैसा दिख रहा है. पैसा दिख रहा है. तो अनिल जी, यू हैव बीन थ्रू मेनी अचीवमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 32 years. आपने बहुत कुछ हासिल किया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. एंड व्हाट डज दोज अचीवमेंट्स मीन टू यू? Yeah, great.
my personal favorite question, I can say, you know. So I am being awarded the youngest chairman club in India till today. Okay. So chairman club was the highest recognition in 1990s, and it requires 4 years consistent performance. Then one can become a chairman club. At the age of 24, I became the member of that club. Okay. So nobody till today had achieved that. This is one. 1999 से MDRT, that's an organization based US based organization for insurance professionals. So I am a member of that. Now I am a life member for that. In which I had done 3 times TOTs, 9 times COTs, and from 2011 I am a corporate club member. थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और कैसे आपका जो विजन है टुवर्ड्स टर्म पॉलिसीज वो चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. Key area of insurance is term insurance. Protection. Because protection is very important, and that too on a level of, because I sell my clients term insurance on a goal-based planning plus HLV, human life value. So that they have to understand. अदरवाइज आप क्या होता है ना, आप नॉर्मली जब किसी भी क्लाइंट के पास जाते हो आप बोलोगे ना कि भाई इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस वहाँ लिया हुआ है, तो इस लोग में इस लाइक कि भाई हेडेक है तो सेरिडोन ले लो, डॉक्टर को पूछने की दरकार नहीं है, बिकॉज इंडिया में हर तीसरा आदमी डॉक्टर है. सो यहाँ ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है समझना आपको कि टर्म इंश्योरेंस एज पर योर वैल्यू, बिकॉज ये वो चीज़ है जिसको आप आज से ही अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए चलते हो, जो आप फ्यूचर में कभी अरबपति करोड़पति बनोगे, हम आपको आज बना देंगे. एंड आई थिंक पोस्ट कोविड लोगों को ये टर्म इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा, लोग खुद से बोलने बहुत लगे. ज़्यादा अवेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. प्लस यंगर जनरेशन में इफ यू टेक term insurance earlier in your life, you have to pay little premium, but you Right. get better coverage. तो बहुत कम पैसे में मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज मिल जाएगा और Yes. लंबे समय के लिए Yes, मिल जाएगा. exactly. So my next question to Archita, what do you think as per your perception कि यंगर जनरेशन का टर्म इंश्योरेंस के प्रति जो परसेप्शन है पिछले 4-5 साल में कैसा बदलाव आया है, क्या चेंज हुआ है, व्हाट आर देयर थॉट प्रोसेस अबाउट टर्म इंश्योरेंस, एंड ये HLV का जो कॉन्सेप्ट अनिल जी ने बताया, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस वो दे रहे हैं, हाउ आर दे ग्रैबिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ HLV. Okay, so अभी के जनरेशन में बिफोर 5 years तो नो वन इन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 उतना नहीं सोचते थे फॉर इंश्योरेंस Right. और एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. दे वर लाइक कि ठीक है, वट एवर आई एम गेटिंग आई कीप सम इन माई सेविंग्स बैंक एंड यूज द रेस्ट. बट आफ्टर कोविड द एप्लीकेशन ऑफ 50-30-20 रूल, तो उससे दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. अब इन्वेस्टमेंट्स में अभी भी पीपल आर थिंकिंग कि ईजी मनी आ जाए, बट ऑल्सो दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एज वेल. सो उसके लिए दे आर गोइंग इन टू टर्म इंश्योरेंस. अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इन टू टर्म इंश्योरेंस, बट दे आर स्टिल नॉट यूटिलाइजिंग द इंटायर बेनिफिट एंड फुल्ली वो लोग अपना जितना पोटेंशियल है उस प्लान का वो यूटिलाइज नहीं कर रहे इवन नाउ. मतलब HLV का कैलकुलेशन अभी भी उतना नहीं, नॉट डन नहीं प्रॉपरली हुआ. इवन नाउ. इवन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बहुत कुछ अबाउट इंश्योरेंस और इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे टीच अस. तो अभी ये चीज़ का बहुत सारा देयर हैज़ बीन एन अवेयरनेस अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दिस जनरेशन, डिजिटलाइजेशन की वजह से ज़्यादा. But even now, term insurance itself is not advertised in a very in a way कि it appeals to the younger generation even now. okay, right. So it's our call, right? It is. That we need to advertise more in that. ठीक Yeah. है, तो ये So we और need एक to- चीज़ है कि अभी तो बहुत सारे डिजिटल कैलकुलेटर्स भी आ गए हैं Yes. जहाँ पे यू कैन इजीली कैलकुलेट योर HLV. सो Exactly. आज Yes. के ज़माने में यंगर जनरेशन आर मोर प्रोन टू डिजिटल To टूल्स, digital. तो दे कैन इजीली गो फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट देयर HLV. So that उनका गोल, उनके फैमिली का बैकग्राउंड, उनका अपना नेट वेल्थ एंड देन HLV. So combining all of these, we make a chart of them कि भाई आज ये मिनिमम सम एश्योर्ड का आपका एक पॉलिसी होना चाहिए. और अब जिस हिसाब से HNIs के और बाकी चीज़ों का इनकम वगैरह इंक्रीज़ कर रहा है, तो वी हैव टू लुक ऑल्सो कि भाई हम इसको और कितना बढ़ा करके दे सकें. एंड
ये सेल्स पिच है हमारा वैसे also, कि आपको अगर मान लो मेरे को 25 करोड़ का देना है तो आई पिच फॉर 50 करोड़, 10 का देना था आई पिच फॉर 20, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई आपकी वैल्यू वो है। आज अगर मैं आज के दिन में कोई भी वैल्यू या कोई भी अपने डिसाइड करते कि आपका ये वेल्थ आ जाए, तो मैं तो उसमें इन्फ्लेशन नहीं पकड़ रहा, मैं तो आपका जो इंक्रीमेंटल वो नहीं पकड़ रहा, तो इट ऑलवेज हैज़ टू बी डबल मिनिमम, क्योंकि आप अपना रिटर्न डबल चाहते हो तो हम वो चीज़ चाहते हैं। सो वी टेक ऑल दिस एस्पेक्ट इनटू इट एंड देन वी प्रपोज दिस इशू। अब ये टर्म इंश्योरेंस जब हम लोग का बात करते हैं इंडिया में, अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो इसका आप आगे चल के इसका भविष्य क्या देख रहे हैं कि इन नेक्स्ट 10 years और 15 years और 20 years डाउन द लाइन, हाउ डू यू सी टर्म इंश्योरेंस इवॉल्विंग इन इंडिया? सो बहुत बेसिक सा चीज़ है, और अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो मैं आज के दिन में जो बिज़नेस कर रहा हूँ एवरी ईयर वो डबल होगा, सो यू कैन मल्टीप्लाई दैट वे, दिस इज़ वन। वाई? सो वाई का चीज़, अब जो लोगों के प्रति अवेयरनेस आ गया, या जो हमारी टीम या जो हमारे सारे एडवाइज़र जितने भी हैं ऑल इंडिया में, या वो सब जितने तरह से हम लोग अवेयर करवा रहे हैं लोगों को, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने का है। लाइक आई सेल टर्म इंश्योरेंस एज स्टेट प्लानिंग ऑल्सो। Okay. So state planning, you can always have a नहीं दिखने वाला प्रोडक्ट, कि आप एक फ्लैट ले रखे हो, आप एक बंगला ले रखे हो, आफ्टर यू दैट विल बी गिवन टू योर कीन्स और नॉमिनेशन द वे यू डू, है ना। सेम वे आप टर्म इंश्योरेंस जब लेते हो ना, दिस एडिशन टू इट, एंड ये एडिशन आप अपने किसी भी कीम को, या अपने नॉमिनेशन जिसको आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपके अपने जो भी बाकी चीज़ें हैं, जो भी आपका एसेट्स है वो जाए, तो ये क्लास वहाँ पे जाता है। टर्म पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अनिल जी आपका स्ट्रैटेजीज क्या है? मतलब व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू आर थिंकिंग और यू आर इम्प्लीमेंटेड? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू आर डूइंग टू प्रमोट? So till now I had told about the individual policy and all. So the second thing which we do is the key man insurance and employee insurance. So these two are the aspect where a company can buy a policy on behalf of their employee as a director maybe, or maybe a key person on that, and get the tax advantage to it. Because कितना भी आप कर लो, आपका इंडिविजुअल इनकम का जो क्राइटेरिया जो एक टर्म इंश्योरेंस को लेने के लिए लगता है, दैट इज अगेन इफ यू वांट टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस फॉर से 50 crores and above, so it requires good financial returns of yours, जो बहुत बार नहीं मिल पाता है। तो बट उनकी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर हैं, राइट, वहाँ पे देयर आर ऑप्शन। सो वी ऑल्सो सजेस्टेड देम कि भाई आप इसको एज अ की मैन और एम्प्लॉय में आप इसको लेते हो। सो वहाँ पे दो फ़ायदा है कि आपको इसका टैक्स एडवांटेज भी मिलता है, एंड द कंपनी पेज द प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ यू, दिस इज़ वन आइडिया। इसके कारण उनका टोटल हेज कर जाता है फंड, राइट। बिकॉज आज के दिन में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो उसका 30% इन्वेस्ट विथ अस एंड रेस्ट 70 इज विथ अदर कंपनीज। सो आई ऑलवेज सी कि आप अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो उसका 30% आपको सेव करना चाहिए, और उस 30% का 30% इंश्योरेंस पे आना चाहिए। सो वहाँ का जो फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, वी हैव अ फिक्स कैलकुलेटर फॉर दैट, तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है टर्म इंश्योरेंस। एंड उसके बाद में आप एमएफ कर रहे हो, या डायरेक्ट इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हो, या आप बाकी प्रोडक्ट्स में लीड कर रहे हो, वो उसका एक परसेंटेज डिसाइडेड है, एंड यू इन्वेस्ट दैट वे। सो टर्म इंश्योरेंस को आज के दिन में और फर्दर प्रमोट करने के लिए, और यंग जनरेशन प्रमोट के लिए करने के लिए, लाइक शी अब उसका एक रील्स बना करके यू नो इंस्टा और ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है, अभी तो वी आर ट्राइंग फॉर दैट ऑल्सो, सो दैट पीपल लाइक हर gets immediately affiliated to it, and then तो अगर आपने एम्प्लॉय का बात किया, तो एम्प्लॉय में इट गिव्स अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर आल्सो, उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। इट गिव्स अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय आल्सो कि उसका कवरेज हो जा रहा है, और पैसा कंपनी पे कर रहा है, एकदम सही, प्रीमियम इज पेइंग बाय द कंपनी, राइट। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, राइट। और इसमें की मैन में तो बहुत ज़्यादा कवरेज हो सकता है। यस, इंश्योरेंस कवरेज एचएलबी के ऊपर वो डिपेंड काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वी आर ऑन टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पीपल हु आर लुकिंग टू एंटर दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, मतलब आपका सजेशंस क्या होगा उनके लिए? हाउ विल यू
शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम कि क्या आप बोलना चाहोगे उन लोगों को? सो मैं एक चीज़ में ज़रूर ऐड करूँगा जो अभी करंट सिनेरियो से भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई अगर आप अपने देश की सुरक्षा करने के लिए फौजी नहीं बन सके तो कम से कम एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बन करके या उनके साथ सपोर्ट करके पूरे इंडियन इकोनॉमी में जो उनकी पॉपुलेशन है, जो बाकी चीज़ की देश की सुरक्षा तो वो कर देंगे, उनके फैमिली की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी आदमी आज के दिन में अगर अपने आप को सेकेंड एविएशन या एडवाइज़र के रूप में फर्स्ट बिजनेस के हिसाब से भी देखता है तो दिस इज़ द बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप खुद के बॉस हो, नो टाइम लिमिट्स, राइट, एंड एंडलेस इनकम, रिकॉग्निशन, trips, all these are byproducts, so not going to that. So this is my earnest advice to the young generation specifically कि आप अपने जो जिस बिजनेस को आप नॉर्मल तरीके से देख रहे हो तो टू हेल्प द कंट्री, आई पर्सनली नाउ फील दिस एज अ हेल्प ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज जो चीज़ें अपने इतने सालों में सीख करके अगर अपने इसको डाउन द लाइन लोगों को सिखाते हैं या दे पाते हैं तो ये चीज़ें नई लोगों के पास नहीं होने के कारण ये चीज़ें गैप नहीं हो जाए. सो यंग जनरेशन हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड बिलीव मी, वट एवर बिजनेस यू कैन थिंक ऑफ, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज always upper on that because very minimal cost. If you talk of investment, that's knowledge, that's your education only. A small office can be your office for working, so not required that big showrooms and to do the business. The only thing is your vocabulary and the contact sphere. इसके अलावा मतलब and earning is useless, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसके लिए. तो सही एडवाइस अगर दिया जाए लोगों को, कस्टमर्स को, जैसे आपने 32 ईयर्स से देते आ रहे हैं, तो लोग सुनते हैं, लोग विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं और आपके झोली बढ़ता रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. सो विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर आगे के जर्नी के लिए. एंड यू हैव स्टार्टेड, तो आपका बहुत लंबा जर्नी होगा अभी बजाज के साथ होगा, बहुत लंबा जर्नी. सो थैंक यू अनिल जी एंड अर्चिता फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेज पॉडकास्ट. इट्स अ प्लेजर मीटिंग you and talking to both of you. Thank you. Thank you, sir. So that was Anil ji and Archita today in our podcast. So now to our listeners, thank you for tuning in to this episode. Remember, the journey to financial success is paved with perseverance and innovation. Stay motivated, pursue your dreams, and we look forward to see you in the next time. Until then, take care and keep striving for excellence. समझो हो गया.